afternoon, dear friends. My name is Dr. Sunil Dutt. I am Professor of Education and Education Management at NITTT at Chandigarh. Basically, I am a science postgraduate, did my MSc Honours in Chemistry, thereafter shifted to Education and did my post-graduation and PhD in Education Technology. After working for about 2.5 years, I joined teaching profession as a lecturer in a college of education at Ambala city and worked there for 7 years from 85 to 92. In November 1992, I joined this institution in the Department of Education and Education Management. So I have got more than 29 years of experience in teaching and research. Since 2005, I am heading the academic cell of the institute. Academic cell is responsible for examination and admission and examination of both ME and PhD program. We are running a master's program as well as PhD program in affiliation with Punjab University Chandigarh. I'm also working as Central Public Information Officer under RTI Act since 2005 and contributed about 46 papers in various national and international journals and also presented number of papers in various conferences. I have already guided 29 PhD dissertations registered with Punjab University Chandigarh, presently guiding 6 more PhD dissertation as well as 2 Master of Engineering Education dissertation. So this is my brief profile. Now coming to today's talk, friends, in every classroom, every laboratory, every workshop, every teacher wants better results. Every teacher wants better performance of his students towards the attainment of classroom objectives. The question is how the teacher is going to attain the objectives. Obviously, you would say that in order to attain the objective, the teacher wants that his students should possess ability or abilities.
support the family financially and emotionally and coping with a mental disorder. Naturally उसका जो willingness level है, eagerness level है, वो different हो जाएगा, okay, because he belongs to these category. Oh, you see, all teachers believe that motivation is very important, but many insist that it is not possible to motivate students because they say that you can lead a horse to water, but you cannot make him drink. Motivation is internal, and people have to motivate themselves. Now, okay, it is true that you cannot force a horse to drink water, but you can always make him want to drink water by giving him plenty of salt first. Okay? अगर उसको हम सॉल्ट देंगे तो उसको पानी की प्यास लगेगी. So this can be applied to classroom situation. You cannot force the student to learn, but you can always make him want to learn by salting your teaching with techniques for gaining their attention or for creating their interest. So it means you have to salt your technique. वो आप देखते हैं चटपटा और नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं एज कम्पेयर टू मीठा खाना या फीका खाना. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्लासरूम में कुछ ऐसा करना है जिससे हम उनका अटेंशन भी गेन करें, उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट करें एंड वो क्लासरूम में फिजिकली भी बैठे हुए हों और मेंटली भी बैठे हुए हों. ओके, so it means we have to sort these techniques. So as teacher who is teaching the students without first inspiring them, he is simply hammering on cold iron. ठंडे लोहे को हैमर करना कितना मुश्किल है. अगर वो पहले से गर्म होगा, इंथुजियास्टिक होगा बच्चा, तो वो जल्दी से ग्रास्प करना शुरू कर देगा. ओके, सो बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं. दे हैव इंडिकेटेड दैट स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी मच willing to learn or who are intrinsically motivated, they take initiative, they are very much spontaneous, they are very much independent, they help others, okay, to inspire, because अगर वो खुद inspired हैं तो उसके जो आसपास के जो बच्चे होंगे वो भी inspired feel करेंगे. Now coming to the concept of motivation. Motivation is actually concerned with why of behavior, the reason behind people putting in effort, why of behavior. आप अपने टीचर से कुछ फेवर लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो उसने काम अलॉट किया हुआ है वो ठीक तरीके से करके उसके सामने प्रेजेंट करेंगे एंड ही विल बी हैप्पी. आप उनसे फेवर लेना है, राइट? घर में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को यूजुअली शाम को भी मिल्क पिलाया जाता है. मदर उसको ग्लास फुल ऑफ मिल्क देती है. बच्चा ड्रिंक नहीं करता, ही सेज कि मैं दूध नहीं पीऊंगा. तो मदर क्या कहती है कि बेटा दूध पी लो, आपको चॉकलेट मिलेगी या आपको सॉफ्टी मिलेगी, राइट? तो ही ड्रिंक्स मिल्क इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सॉफ्टी और चॉकलेट. उसके बिहेवियर में चेंज आ गया. ओके, तो आई सेड दैट मोटिवेशन इज concerned with why of behavior, the reason behind people putting in effort. अब दूध उसको पिला दिया चॉकलेट के बहाने, मार्केट में शाम को चले गए तो उसको उसके मन में वो चॉकलेट घूम रही है, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, राइट? तो वो माँ को या फादर को बोलता है पापा मुझे चॉकलेट, आप उसको हटा देते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो चॉकलेट यानी इस बहाने से वो दूध नहीं पिएगा, राइट? तो आपका अटेंशन गेन करने के लिए वहाँ चिल्लाएगा, फिर आप उसको चॉकलेट भी लेके देते हैं. ऐसा कई पेरेंट्स ने बताया. लेकिन इफ यू ऑलवेज give this kind of motivation, then he will be dependent upon it. So you need to inspire the student with extrinsic motivation in the beginning, but later on you remove or you minimize the frequency of external motivation. Let him carry out work intrinsically. वो कैसे करेगा?
if I tell them the long term benefit of drinking milk? मैं बच्चे को बताऊं कि भाई इसको पीने से, जैसे मैं क्लास में आता हूँ, क्लास में आकर मैं बोलता हूँ टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इनर्शिया, तो आप क्या कहते हैं? सर दिस इज योर हेडेक, प्लीज गो एंड ब्रेक योर हेड। ऐसा पूछो, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप कहेंगे पढ़ाइए साहब। अब आप क्लासरूम में बैठे हैं, यू वांट टू नो व्हाई यू आर सिटिंग इन द क्लास, इट मींस द व्हाई पार्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स इन द बिगिनिंग, कि ये हम लर्न क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रैशनल, देन दे विल स्टार्ट। अगर मैं मे आई हैव योर टेंशन प्लीज, कोई टेंशन नहीं देगा जब तक मैं एक सिचुएशन क्रिएट नहीं करता। उदाहरण मैं देता हूँ, उसे बहुत बार मैंने उदाहरण दिया, लेट मी रिपीट इट। यस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, is it at rest or is it moving? It is at rest, wonderful. Now this is at rest. Now on switching on the fan, again one question, what is the position of this fan? In motion, wonderful. So this is at rest, fan is in motion. Now how I can bring this object which is at rest in motion? By pushing or by pulling, that is by applying some force. Wonderful, Ashutosh ji. So now the next question is, you are moving, you are sitting in a moving bus and the driver suddenly applies brakes. What happens? आपका नाम क्या है? मोहम्मद जी ने बोला we fall forward. And what happens when the driver suddenly starts the bus? We go backward. Wonderful. So why are these due to? तो अभी देखिए आपका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ गया. Now you are starting taking interest in the classroom and you want to know why. Then you say that these are due to laws of inertia. So today in this session we will learn laws of inertia. So मैंने क्या बोला? We will learn. Never say I will teach. क्योंकि जनरली हम क्लासरूम में आते हैं, आते साथ बोलते हैं, क्यों, आपका नाम क्या मैम? संतोष. हाँ संतोष जी, हम यही कहते हैं ना, टुडे माय टॉपिक इज दिस, वो मेरा ही टॉपिक है. टुडे आई विल टीच दिस, टुडे आई विल डिस्कस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट दिस थिंग. ये पुराना चीज हो गया. अब आपके सामने देखो हाथों में मोबाइल भी हैं, किसी के पास लैपटॉप भी होगा, आईपैड भी होगा, इंटरनेट भी है. नाउ इट मीन्स यू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यू आर एडिंग, you are contributing. It means I am also learning along with you, है ना, मैं अकेला नहीं आपको सिखा रहा. So you begin your lecture that today in this session we will learn laws of inertia. Go to board and write in the middle laws of inertia. क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट कई बार कंप्लेन करते हैं, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि टीचर ने टॉपिक तो लिखा ही नहीं चॉक बोर्ड के ऊपर. वो कहता है मैंने बता तो दिया, उसको कहाँ पता चलता है. आप सेंटर में लिखेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया, देन लेफ्ट हैंड साइड में यू गिव देम एन ओवरव्यू ऑफ योर लेक्चर. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देन इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एंड देन द एग्जांपल्स. नाउ लेट मी कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो आपने एक ओवरव्यू दे दिया. सो ये जो लेक्चर का जो बिगिनिंग पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन जो है, it is very very important. It is like the warm up phase of your lecture, so it should fire the imagination of your students कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो why part जो है वो आपने communicate beginning में जरूर करना है, otherwise student will not take interest. So motivation means why of behavior. It is a process which leads the individual to satisfy some need. Actually, this word has been taken from a Latin word movere, M-O-V-E-R-E. Movere means to move. Now, taking all the students together, it means taking all the students together to reach the goal effectively and efficiently. Motivation is the hidden force within us which impels us to behave
in a particular way. ठीक है? And it refers to motives in action. Motive क्या होता है? Something that makes a person act in a particular way. And motives are expressions of a person's needs. And strength of each motive and pattern of these motives influence a person's action, his thoughts, his words. ठीक है ना? अगर वो मोटिव फुलफिल हो जाता है, आपके बिहेवियर में, आपके शब्दों में वो चेंज आता है. अगर फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, यू बिकम स्लाइटली डीमोटिवेटेड, डिससैटिस्फाइड, फ्रस्ट्रेटेड. ओके, आपके बिहेवियर में नेगेटिव चेंज आता है. ऐसा ऐसा होता है. सो हम जैसे ही स्टूडेंट को कोई इनिशियल टास्क दे रहे हैं, सो उसको पहले इंस्पायर करना है. देयर आर सो मेनी टेक्निक्स. अभी एक टेक्निक मैंने आपको अभी यूज भी किया, शायद आपने नोटिस किया. क्या किया? शाबाश. उन्होंने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि मैंने सही उत्तर पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी. तो ये जरूरी है. और साथ में मैंने क्या बोला? आशुतोष जी, है ना? यू सी, ए पर्सन नेम इज टू हिम और her is the most important and the most sweetest sound. क्यों संतोष जी? खुद का नाम जब टीचर आपको बोलता है, कितना प्रिय लगता है. घर में भी कई बार छोटे बच्चे बोलते हैं घर में आके, पापा मम्मा आज ना मैम ने कहा कि सुनीति जी ने बहुत अच्छा काम किया. She felt very happy. Okay, तो this is one technique. That technique is remembering the names of your student. So build up a system, put in some effort, and try to remember the students of your student, because a student's name is to him or her the most important and most sweetest sound. So आप आज रोल कॉल ले रहे हैं बाय नेम, क्योंकि अगर मैं बोलूं यस रोल नंबर 71, तुम बताओ, 71 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? आशुतोष जी आप बताएं. तो ये इनको लगता है मुझे जो है एक एप्रिसिएशन मिला, पर्सनल टेंशन है, या वो ही मतलब कि फील्स वेरी मच हैप्पी कि मेरे सारे क्लास में से मेरे नाम को लेके सर ने बोला है. नाम आप सबको बार बार बोलेंगे, कभी किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, कभी किसी से पूछेंगे. सो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोटिवेटेड बिहेवियर is always a goal directed behavior, and the strength of motive will tend to decrease if it is either side or blocked from satisfaction. ठीक है, मैंने आशुतोष जी को झट से पेन निकाल के दे दिया, वंडरफुल, बहुत अच्छा आंसर दिया, बट ही हैज नो you can say love for the pen because he has so many pens at home. So as a teacher, I need to know what motivates my students, because what motivates one student may not motivate another student. There are individual differences. किसी कोई अलग नीड है, किसी को कोई अलग नीड है. तो as a teacher, try to identify the needs of your students. Okay, so motivated behavior is always a goal directed behavior. Motivation means what makes people put real effort and energy into what they do, or getting people to do willingly and well those things which have to be done. Now coming to motivation with a need which exists in all of us. सब में होती है. किसी की नीड है कार लेनी है, किसी की नीड है शादी करनी है, किसी की नीड है एमई करनी है, किसी की नीड है पीएचडी करनी है. ओके,
Get relief. So टेंशन कॉजेस एक्शन. आपने बोला कुछ प्रयत्न करेंगे, कुछ काम करेंगे, उसके लिए कोई एक तरीका बनाएंगे. सो दैट विल गिव यू रिलीफ, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ योर नीड. और ये हमेशा नहीं होता कि भी आपने एक जो है एक्शन लिया उसके बाद आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाए. ये ज़रूरी नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाए. हमें सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी देखना है, उसको भी ट्राई करना है. कुछ लोग तो पैरेलल में 2-3 ऑप्शन को लेके चलते हैं. ऑलवेज थिंक अबाउट पॉसिबल alternatives. Now moving to the two types of motivation. One is extrinsic motivation. This is not inherent in the behavior. This is something which is administered by some external agent. घर में external agent कौन है? Father, mother, elder brother, elder sister. स्कूल या कॉलेज में external agent कौन है? Teacher. Okay. So teacher appreciate करता है. So it is not inherent. And according to extrinsic motivation, people are motivated to obtain reinforcers. Reinforce क्या होता है? Reinforcer appreciation, जैसे मैंने आपको किया. That will reinforce you. Reinforce का मतलब आपको दोबारा से उसी तरह का काम करने के लिए आप दोबारा से वो आगे आएंगे. अगर आपकी फीलिंग नहीं होती, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव. तो आपके मन में आएगा टीचर कितना खड़ूस है, मैंने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, ये शाबाशी भी नहीं दे सकता था. अगर मैंने नेगेटिव भी देना है तो मैं ऐसे बोलूंगा, आशुतोष जी, दिस आंसर इज नॉट अप टू योर यूजुअल स्टैंडर्ड. यू हैव गिवन सम हाफ आंसर. कि आप हमेशा अच्छा आंसर देते हैं, तो आज थोड़ा सा कमी रह गई है. तो मैंने एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट किया. okay? आपका फुल नेम? अशफाक अंसारी जी. तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, तो इसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक थे. तो मैं उसमें लिखता हूँ, दिस वर्क इज नॉट अप टू योर यूजर स्टैंडर्ड, इट हैज गॉट सम स्पेलिंग एरर. तो इनको एक मैंने प्रतिक्रिया दी इम्प्रूवमेंट के लिए. नाउ व्हाट ही विल डू नेक्स्ट टाइम, he will submit the assignment only after he has incorporated spell check. पहले से spell check लगा के, in order to avoid future criticism. So मैंने प्रतिक्रिया, आपने बोली फीडबैक, यानी मैंने फीडबैक दी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी, इंफॉर्मेटिव फीडबैक दी. यानी फीडबैक इज फॉर इम्प्रूवमेंट. फीडबैक इज नॉट टू प्रूव कि तुम तो हमेशा ऐसा ही प्रोजेक्ट जमा कराते हो. कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं, दिस वर्क इज टिपिकल ऑफ यू, शॉर्ट ऑन फैक्ट्स एंड बैडली प्रेजेंटेड. सिंपल शब्दों में, जैसी तुम्हारी शक्ल तू वैसा काम करके देगा, वेरी पुअर. दिस इज मीन्स this is meant that we are attacking the individual. We are not criticizing his work, we are criticizing the individual. You see, even a good student can produce some poor quality work. The idea is to point out the work, not the person. क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी पर्सनल जो अटैक है एक्सेप्ट नहीं करेगा. ज़माने चले गए जब चुपचाप बच्चा बैठा रहता है क्लास में, तो कहेगा अच्छा चल बाहर आना फिर देखता हूँ, है ना. ऐसा होता है ना सारी जी. सो it is the need to complete a task or perform an activity for the sake of a reward, privilege or externally derived satisfaction. It is not inherent, अंदर से नहीं है. It is something which is administered by some external agent. Maybe it is imposed either on the task or the student by a teacher or some external agent. टास्क को बता दिया कि ये टास्क होगा, इसके साथ आपको ये बेनिफिट मिलेगा.
आप अभी ये कोर्स करने आए हैं, आप में से सच सच बताओ, ये 8 लोग बैठे हैं, अपने मन से कौन कौन आया है? तो 6 आए हैं हाथ, 2 हाथ नीचे हैं, उनको जबरदस्ती भेजा गया है। सो मोटिवेशन टू लर्न, कि आप वहां जाके हम कुछ सीख के आएंगे, ठीक है। इसका मतलब अंदर से चाह है, क्योंकि लर्निंग जो है इट्स लाइफ लॉन्ग, यू हैव टू लर्न कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि अब हम इस ऐसे प्रोफेशन में आ गए जिसमें हमें खुद को अपडेट करना है, हमेशा करते रहना है कॉन्टिन्यूसली। तो जो इच्छा से काम होती है, वो इच्छा क्या होती है? इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपकी जितनी हॉबीज हैं, ये सारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से है। कोई मॉर्निंग वॉक डेली जाता है, कैसा भी मौसम हो उसने छोड़ना नहीं है। इवन रात को सोने से पहले ब्रशिंग द टीथ, ओके, ये भी कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते, अंदर से आवाज आती है। सो ये हॉबीज, कोई बैडमिंटन प्ले करता है, कोई कैरम बोर्ड खेलता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई सोशल सर्विस जाके करता है। सो दैट इज इंट्रेंसिक मोटिवेशन, that is what has been internalized and is the drive to do things for their own sake or for self reward. जैसे मैंने बोला, स्टूडेंट्स हु एम फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। Now I will move to approaches to motivation. There are 3 approaches. One is the behavioral perspective. This emphasizes the reinforcement of desired behavior through external motivation. And according to this approach, people are motivated to obtain reinforcers and avoid punishment. So motivation can be considered as a state, particularly in learning, when a person does not learn of his own accord but under the influence of some external motivator. घर में पेरेंट्स कहते हैं, if you get all A's you will get a bike or you will get 1000, अभी आप एग्जाम में अच्छा करोगे, दिखाओगे तो मैं आपको 1100 रुपये दूंगा। दैट इज मोटिवेटेड। क्लासरूम में टीचर जो है मोटिवेशन कौन सी देता है? वंडरफुल, यू हैव सेड वेरी राइटली। जहाँ उसके काम को सब स्टूडेंट्स को बताया, देखो भी इसका काम, जहाँ उसके नाम नोटिस बोर्ड पे लगा दिया दैट ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। And this perspective helps explain why some students prefer some subject, some students submit assignment on time, some students do not attend classes at all. It means there is something in the environment which reinforces these behavior, or these behavior help the student avoid some punishment, but never overdo it. Use moderation when administering external motivation. Otherwise, people will be dependent upon you. Some people will say that the teacher is trying to manipulate us by वो काम लेना चाहता है इसलिए वो ऐसा ऐसा कर रहा है। तो पहले काम की इंपॉर्टेंस बतानी, सिग्निफिकेंस बतानी। टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक का सिग्निफिकेंस बताएं, देन ही विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। तो पहले उसको इनिशियली मोटिवेट करें एक्सटर्नल से। सो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, तो यूज मॉडरेशन, डू नॉट ओवरडू इट। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, साइकोलॉजी का लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बिहेवियर which is accompanied by satisfaction or reward on the part of student is likely to be repeated or permanent than the behavior which is accompanied by dissatisfaction or failure. Obvious सी बात है, जिस काम के परिणाम पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है उस काम को दोबारा आप रिपीट करना चाहेंगे, ऐसा होता है ना। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हैज गॉट 3 कंपोनेंट्स।
अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन को हम क्या टर्म देंगे? व्हाट डू वी कॉल बिहेवियर मॉडिफिकेशन? यस, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल, मॉडिफाई हो गया ना आपका बिहेवियर। तो इसको क्या टर्म आप दे सकते हो? लर्निंग, दैट यू हैव लर्न। लर्निंग का मतलब होता है, टू लर्न मीन्स टू मॉडिफाई बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ आता था, but after this topic is over, you will be able to explain the concept of motivation. You will be able to distinguish between two types of motivation. You will be able to describe the approaches to motivation. It means a change in your behavior will take place as a result of imparting purposeful experience. मैंने आपको कुछ experience दिए, आपके behavior में वो change आ गया. It means you have learned. So it has got three components. One is stimulus. What is stimulus? Stimulus क्या होता है? It could be anything. It could be an object, a a person, or an event that leads to a response. तो आप देखिए इस रूम में कितने सारे स्टिमुलस हैं। ये एक माइक है, ये माउस है, ये स्क्रीन है, ये है। It means everybody is forming some kind of response in his or her mind. अब कितने सारे स्टिमुलस हैं आपको दिख रहे हैं ना? आप एक छोटा छोटा रिस्पॉन्स अपने माइंड में फॉर्म कर रहे हो, तो दैट इज स्टिमुलस। सेकंड कंपोनेंट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? a unit of response. The second is that response, a unit of behavior that follows the stimulus. आप अपने माइंड में, response is a unit of behavior. This is not your total response behavior. आप at a time बहुत सारे stimulus को देख रहे हैं। So stimulus हो गया any object, any person, any event that leads to a response. And what is a response? It is a unit of behavior that follows the response. And what is third R? Reinforcement. It is a consequence of the response. It is a consequence of the response. So if a particular stimulus response pair is accompanied by a desirable consequence, then it will be more likely that the stimulus involved will prompt the same response in future. दोबारा बोलता हूँ, स्टिमुलस, आपसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आपने रिस्पॉन्ड किया, कॉन्सिक्वेंस क्या है? मैंने शाबाश कहा। सो मैंने बोला इफ ए पर्टिकुलर स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर इज अकम्पनीड बाय ए डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, जो आप चाहते थे, then it will be more likely that the stimulus involved will prompt the same response in future. आप दोबारा से उसको रिपीट करेंगे। एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए we can employ 4 techniques. One is positive reinforcers. तो मैंने इसमें ली पॉजिटिव रिइंफोर्सर। पॉजिटिव रिइंफोर्सर क्या होता है? A consequence that encourages the repetition of a given behavior is said to be positively reinforced. शाबाश, प्रेज करना। So we will begin with positive reinforcement. Second technique क्या है? Negative reinforcement, या इसको बोलेंगे avoidance learning. Avoidance learning ये क्या होती है? This takes place when people learn to avoid or escape from unpleasant consequences. We learn to drive safely in order to avoid accident.
तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपने उसको एक मौका दिया फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे मैंने बोला, मोहम्मद अंसारी जी, दिस वर्क इज नॉट अप टू योर यूजुअल स्टैंडर्ड, इट हैज गॉट सम स्पेलिंग एरर। तो नेक्स्ट टाइम अंसारी जी सबमिट करने से पहले स्पेल चेक लगाएंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर क्रिटिसिज्म। ठीक है, आपको पॉइंट आउट करना है। सो इट मीन ये जो दो टेक्निक मैंने बताई, पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, these two techniques can be used to increase the frequency of desirable behavior। जिस तरह का बिहेवियर हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने बोला these two techniques can be used to increase the frequency of desirable behavior। तो पहला तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वो तो होगा ही होगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमने उसको फीडबैक दिया, पर्पस इज टू इम्प्रूव, वो उसको अगली बार इंप्रूव करेगा। तो थर्ड टेक्निक इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है गिविंग नो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और withdrawing already given positive reinforcement as a result of his undesirable behavior। यानी उसके अनडिजायरेबल बिहेवियर को हमने इग्नोर करना है, अटेंड नहीं करना, अटेंशन नहीं देनी। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका नाम क्या है? अरुण कुमार जी। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद पेन को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ नॉइज, इट इज डिस्टर्बिंग मी, सपोज। ओके, तो मैं इसको कैसे करूंगा? आई इग्नोर इट फॉर सम टाइम। तो उसके लिए मैं इनकी तरफ अपना आई कांटेक्ट नहीं दूंगा, या मैं इनकी तरफ जैसे आगे जाके मैं आपको अटेंड करता हूँ, इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता हूँ। इट मीन मैंने इनको इग्नोर कर दिया। यू विल फील बैड कि मेरे पास सर अपना आई कांटेक्ट नहीं दे रहे। दिस एक्सटिंक्शन, कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए वो अनडिजायर्ड बिहेवियर को आपने इग्नोर करना है। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो चौथी टेक्निक है पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब कोई रीइंफोर्समेंट नहीं देनी, लेकिन पनिशमेंट जो है वो कैसे देनी है आशुतोष जी? प्राइवेट में। एप्रिसिएशन कैसे देनी है? पब्लिक में। अरुण कुमार जी, आप आफ्टर दिस क्लास आप मुझे मिलना, तो मैं उनको अपने रूम में बुलाऊंगा। हाँ अरुण कुमार जी, आज आप क्लास में पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे रहे थे, क्या बात है? घर में कोई प्रॉब्लम है? कोई ट्रबल है, या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा? कहाँ पर आपको दिक्कत आई? तो मुझे इनके साथ 1-to-1 करना है, टोटली छोड़ना नहीं है, राइट? सो मैं उनको पनिशमेंट क्लास में के बाहर आके उनको थोड़ा सा काउंसिल भी करूंगा। मे बी आप पनिशमेंट भी दे सकता हूँ कि भी 2 दिन आपको ये असाइनमेंट लिख के लानी है, उसके बिना मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो दीज 4 टेक्निक्स कैन बी, ये जो लास्ट की 2 टेक्निक्स है, दीज टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। पहली 2 टेक्निक थी डिजायरेबल बिहेवियर को एनहांस करने की। So this is behavioral perspective. Second is cognitive perspective, which makes use of intrinsic motivators. Okay, और जो बच्चे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं वो कौन होते हैं? उनको अपने गोल्स पता है, दे आर वेरी मच अवेयर, टोटली अपडेटेड हैं, एंड दे आर लाइकली टू प्रेफर चैलेंजिंग वर्क, दे हैव इंसेंटिव टू वर्क फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन, they attempt solution to problems on their own. So intrinsic motivation in learning can be considered as a state which forces the individual to do something or to learn something for his or her own satisfaction. Feel happy that working on some mathematical problem produces, और जब आप किसी वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग बोल देते हैं, आपको प्राइड फील होता है, यस आई हैव डन इट। खुद को अच्छा महसूस होना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जो आप काम करते हो। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि उनका अटेंशन या उनका प्रेज गेन किया जाए। जो काम खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए है
वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो हमें अपने गोल्स इस तरह से एस्टेब्लिश करने हैं कि हम उन गोल्स की तरफ पहुंचने के लिए अपना एफर्ट लगाएं, अपने एक्शन प्लान बनाएं। थर्ड है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। According to this approach, if a person is actually motivated, he is in a state of tension and he is ready to undertake a particular course of action which is consistent with his feelings. And this approach has been given by Abraham Maslow, and according to this approach, human needs have been organized in a hierarchy. Let me go through that hierarchy. At the bottom, hierarchy इस तरह से है, उल्टा ये आपने ट्रायंगल बनाई, दिस इज हायरार्की। बेस ब्रॉड है, ठीक है, बेस इज ब्रॉड, इट मींस फिजियोलॉजिकल नीड फॉर फूड, वाटर, एयर, नीड फॉर स्लीप, नीड फॉर एंटरटेनमेंट, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। इट मींस मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑपरेट एट दिस लेवल। बेस ब्रॉड है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे ऑपरेट एट दिस लेवल। अगले दिन की चिंता नहीं है, आज का है, राइट। सो फिजियोलॉजिकल नीड हम क्लासरूम में कैसे फुलफिल कर सकते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो, वेंटिलेशन रूम में अच्छा हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, हर 2 पीरियड के बाद 10 मिनट की ब्रेक हो ताकि बच्चे पानी या फ्रेश होने के लिए जा सकें, या किसी ने कई आप देखते हैं बच्चे दौड़े दौड़े चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता। तो अगर हम लगातार 4 क्लासेस या 3 क्लासेस लगा देंगे तो उसका ध्यान तो खाने की तरफ है या वो क्लास में खाएगा। तो टाइम टेबल भी इस तरह से बनाए कि एटलीस्ट 2 पीरियड के बाद या हर पीरियड के बाद, क्योंकि एक तो देखिए मूवमेंट कर दीजिए उनकी, पहले 2 क्लासेस इस रूम में लगी, तीसरी क्लास जो है अगले कहीं लगेगी किसी और रूम में। सो प्लेस चेंज करने से भी वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अदरवाइज एक ही जगह पे बैठे बैठे फिटीग होता है। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स, अब ये नीड फुलफिल हो गई, द पर्सन इज स्टिल नॉट हैप्पी, ही वांट्स स्टेबिलिटी, ही वांट्स सिक्योरिटी, ताकि ये जो ऊपर वाली नीड्स हैं, लोअर लेवल नीड जो है फिजियोलॉजिकल नीड, वो छिन ना जाए, जो है वो कंटिन्यू रहे। सो नीड फॉर सेफ्टी, नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी। तो ये नीड कैसे फुलफिल होगी? व्हेन वी क्रिएट conducive and non-threatening environment in the classroom, because students in such an environment, they they will feel free to discuss among themselves and with the teacher, and students in such an environment will develop self-confidence and become more task oriented. So हमें एक नॉन थ्रेटनिंग, जहाँ पर सब बच्चों को कुछ भी पूछने का अधिकार है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अब बहुत बार क्या होता है, लैब्स में, वर्कशॉप्स में हम पोस्टर लगा देते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ओके, तो उसको कोई नहीं देखेगा। अगर मैं लैब में एज ए टीचर, मैं लैब कोट डाल के आता हूँ, ग्लव्स डाले हुए हैं, या मैं जो भी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन, उनको मैं डिपिक्ट करता हूँ, तभी आप उसको फॉलो करें। मैं तो ऐसे ही आया हूँ और आप लोगों को बोल रहा हूँ लैब में काम करना है तो जो है कोट में डाल के या लैब कोट डालें, कोई नहीं ऐसे डालेगा। तो सेफ्टी नीड, नाउ जब सेफ्टी नीड फुलफिल होगी, द स्टूडेंट इज स्टिल नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू वर्क in relation with their friends, okay, nobody wants to work alone। मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दे दूं और आपको साथ में बोलूं आपने किसी से बात नहीं करनी, हाँ अपना अपना सबने काम करना है,
तो आपको कुछ देर के लिए तो ठीक लगेगा, लेकिन उसके बाद इरिटेशन होगी, बिकॉज यू वांट टू बी इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स, कोलीग्स। तो सोशल नीड अराइज होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोशल नीड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपसे अभी यूपी से आए हैं ट्रेवल करके, तो रास्ते में आपको कोई पैसेंजर मिला होगा जिससे आपने बातचीत की होगी, और ऐसे कई सालों से आप कोई ऐसा फ्रेंड भी बन गया होगा। सोशल नीड, तो जिनकी सोशल नीड स्ट्रांग होती है वो दूसरों की किस 4-4 बच्चों के ग्रुप में उनको प्रोजेक्ट्स दूं ताकि वो आपस में काम करें। सोशल नीड। देन अनदर इज दैट स्टूडेंट इज स्टिल नॉट हैप्पी। ह्यूमनिस्टिक के बाद है सेल्फ एस्टीम नीड। स्टूडेंट स्टिल नॉट हैप्पी। सेल्फ एस्टीम क्या होती है? नीड फॉर रिकग्निशन, कि भी मैं हाथ खड़ा किया, सर मेरे से सवाल पूछा, उसके बाद कहें आशुतोष जी आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो सेल्फ एस्टीम नीड। तो कुछ लोग यहाँ पर ऑपरेटिव हैं। मेजोरिटी ऑफ लोग फिजियोलॉजिकल नीड पर टिके हुए हैं, उसके कुछ ऊपर सेफ्टी नीड, उसके कुछ ऊपर सोशल। तो आपने देखा बहुत सारे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, और देन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेल्फ, अभी क्लासरूम में आप देखेंगे सवाल पूछते 5-6 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, बाकी नहीं खड़ा करते। तो मैं किस तरह से सेल्फ एस्टीम नीड बाकियों की भी बूस्ट करूं? हाथ खड़ा किया, हाँ आपने हाथ नहीं खड़ा किया, आप बताइए। तो मान लीजिए ये हेजिटेट करते हैं, तो मैं, मेरे पास इसका समाधान है। या तो मैं इनको हिंट दे दूं, दूसरा समाधान क्या है कि मैं उसी क्वेश्चन को 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चनों में बांट के पूछूं, तोड़ के पूछूं। पर्पस मेरा है इंडायरेक्टली इनको हिंट देना, इसका मतलब वो धीरे धीरे सही आंसर पे आ जाए। कई बार क्या होता है, बच्चा जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसको बोलो जिस तरह की लैंग्वेज है उस तरह से आप बोलिए। अगर मीनिंग क्लियर हो जाता है उसके बाद उसको आप अपने वर्ड्स में, यू हैव सेड वेरी राइटली दैट, दैट के बाद सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए। इसका मोरल तो हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबको, ये नहीं कि सिर्फ 3-4 बच्चे ही आंसर देते जाए। सो सेल्फ एस्टीम नीड। एंड द लास्ट, वो मैंने ट्रायंगल बताया था, लास्ट में टॉप में ओनली फ्यू पीपल ऑपरेट। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड टू बिकम what one believes what is capable of becoming, that is to become in actuality what he or she is potentially। और ये नीड जिनकी फुलफिल हुई है, या तो वो संगीतकार बन गए, कवि बन गए, स्पोर्ट्स प्लेयर बन गए। आप 8 लोग बैठे हुए हैं और सेंटर में कई लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप 10th में, 11th में थे या 12th में थे, आपने अपना गोल बनाया था, आप में से कितने लोग, सच सच बताना, कितने लोग टीचर बनना चाहते थे? हाथ खड़ा कीजिए। सिर्फ 2। इसका मतलब 3। तो इसका मतलब आउट ऑफ 8, 3 का तो था कि भी वो टीचर बनेंगे। तो बाकी जो लोग हैं बाई फोर्स आए हैं, बाई चॉइस नहीं आए। द क्वेश्चन इज, डू वी एवर फुली एक्चुअलाइज? देखिए ये जो अप्रोच थी, ये कहती थी जैसे ही लोअर लेवल नीड फुलफिल होगी, हायर लेवल नीड जो है एक्टिवेट हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होती है तो हायर लेवल सेफ्टी नीड एक्टिवेट होती है, सेफ्टी नीड फुलफिल होगी तो सोशल नीड एक्टिवेट होती है, एंड सो ऑन। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लोअर लेवल नीड फुलफिल नहीं हुई, लेकिन वो नीड फॉर एक्चुअलाइजेशन अचीव कर लिया। एक एग्जांपल, बिस्मिल्लाह खान, नीड फॉर एक्चुअलाइजेशन वो पहुंच गए, लेकिन पीछे दिखाया था बहुत बीमार थे, घर टूटा हुआ था, दवा लेने के लिए पैसे नहीं थे। राइट, टीवी पे आया था ना, दिखाया था ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये लेकिन इस थ्योरी ने
प्लेटफॉर्म दिया, इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो डेवलप हुई। ये सबसे इनिशियल थ्योरी थी ऑन ह्यूमन मोटिवेशन। नाउ द क्वेश्चन इज, डू वी एवर फुली एक्चुअलाइज? I think the answer lies in the individual. People actualize, different people actualize at different levels. Some people feel satisfaction on achieving a degree from a local engineering college. कुछ कहते हैं नहीं, मैं अगली बार फिर AIEEE का एग्जाम की तैयारी करूंगा, जब तक मैं NIT में या IIT में नहीं जाऊंगा। कुछ कहते हैं नहीं, आई एम हैप्पी इन ऑन वर्किंग इन ए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या से प्राइवेट पॉलिटेक्निक। नहीं, मैं ME करूंगा, साथ साथ PhD करूंगा। मैंने इस सिस्टम से बाहर निकल के मैं बढ़िया NIT में या IIT में जाना है। वो बात अलग है कि कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन एफर्ट किया है, और एफर्ट किया है, सिंसियरली किया है, यू विल गेट इट वन डे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, वी विल मूव टू टेक्निक्स ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले कि मैं आपको PPT दिखाऊं, आप 8 बैठे हुए हैं और सेंटर्स में, 2 सेंटर्स में रियात एंड 12 में लोग बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में बैठे हुए हैं। तो से 1 वर्ष से लेके कम से कम 20-25 वर्ष वाले टीचर बैठे हुए हैं जिनको एक्सपीरियंस है। तो आज तक आप लोगों ने क्या टेक्निक्स चूज की हैं, आप बताइए। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ रियात एंड 12 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कि आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या टेक्निक यूज की, सो दैट these techniques must be known to all of us. हाँ जी, रियात एंड 12 में आप जो कोऑर्डिनेटर हैं वो अपने कोलीग्स को कहिए कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं मोटिवेशन से रिलेटेड वो शेयर करें। बोलो भाई, की पूछ रहे हैं? हाँ जी, Speak. Anybody has any experiences to share, please? तो इसका मतलब ये सभी लोग कभी मोटिवेट नहीं करते स्टूडेंट्स को। No experience? हाँ जी, बताइए भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपके पास कुछ वर्षों से लेके कम से कम 20-25 वर्ष का भी एक्सपीरियंस है। कुछ टीचर बैठे होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, या जो 1 साल वाला एक्सपीरियंस भी, उन्होंने भी क्लासरूम में कोई ऐसा काम किया होगा जिससे स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन किया, उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया, उनका क्यूरियोसिटी बिल्ड किया। देखिए, मोटिवेशन कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो बच्चे के मुंह में डाली और वो खुदकता काम करेगा। हमें अपनी टीचिंग में, मैंने क्या बोला था, यू कैन नॉट फोर्स ए स्टूडेंट टू लर्न, but you can always make him want to learn by solving or teaching with technique for achieving their, or for gaining their attention, interest. Yes. हाँ जी, रियात एंड 12। हाँ जी, हाँ जी मैम, दे कैन लिसन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे EVS वगैरह जब हम पढ़ाते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस, तो उनको मोटिवेट करने के लिए सर लाइक आजकल जो स्पैरो है वो बहुत कम हो गई है ड्यू टू मोबाइल सिग्नल्स एंड ऑल अदर थिंग्स। तो सिर्फ उनको मोटिवेशन मतलब किस तरह से है कि जैसे उनको वही हम बताएं, उनको एहसास करवाएं कि किस तरह से हम कोई चीजें जो हमारे से छूटती जा रही है तो हमें वो कैसे प्रिजर्व करनी है। तो ठीक है मैम, इस टेक्निक को मैं बोलूंगा, ये टेक्निक हुई लिंकिंग द कंटेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम देयर डेली लाइफ। यानी अगर आप सब्जेक्ट मैटर को डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ लिंक करते हैं, देन इट विल प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? यू सी, व्हेन अ टीचर इज टेलिंग समथिंग, स्टूडेंट्स माइंड्स आर नॉट स्टेशनरी, their minds are also trying to link what the teacher is telling with their background experiences. And if the teacher has given enough examples from daily life or from word of work, then it will promote meaningful learning. Otherwise it will lead to rote memorization, जिसको रटाफिकेशन बोलते हैं, राइट? तो हमें टॉपिक को
एग्जाम्पल्स के साथ, विजुअल्स के साथ रिलेट करना है, लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है एग्जाम्पल्स। और कोई और टीचर आप बताना चाहेंगे? यस, चलिए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर। कुछ बोलो 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 बोलो। देखिए, आप के पिछले कोर्स में सजेशन आए थे कि ये जो लेक्चर है टू वे यानी इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन यानी आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, एंड यू आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। Sir, through interactive, two-way communication, we can make the topic interesting for the students. Like we can for giving the presentation on the topic related, and So, some kind of group activities through which they can interact. So you have said very rightly that by using two-way lecture, we can make classroom, you can say, presentation very much effective, and people would like it. देखिए, हम यूजली कहते हैं कि अगर टीचिंग बाय टेलिंग है, एक बच्चा कहता है सर इफ यू टेल मी आई विल फॉरगेट, दैट इज टीचिंग बाय टेलिंग, सिंपल, मैंने लेक्चर दे दिया। दूसरा कहता है सर इफ यू शो मी मीन्स that you will write some main points on chalkboard, or you will bring visuals, PPT है, I may remember। और तीसरा बच्चा कहता है सर if you involve me I will be always with you। तो teaching by seeking their participation। तो participation कैसे उनकी लेनी है? by inserting few questions, by asking him to write the next step on the board, or by inviting questions, so they will participate। हाँ जी, और बताइए। Yes, sir. One more thing I would like to add. We can put some kind of practical example in front of them, taking a case study or some related to that particular topic, and then we can relate it to the practical thing. करेक्ट, हाँ जी। और इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि मोटिवेशन में इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फोर्स, अब इस क्वेश्चन को डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंटली आंसर करेंगे, राइट? तो मैं चाहता हूं कि बच्चा डेफिनेशन लिखे, तो एक आंसर शीट जो है दो टीचर द्वारा अगर वैल्यूड की जाती है, दैट विल कैरी डिफरेंट मार्क्स। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ डिफाइन फोर्स, स्टेट एसआई यूनिट, तो स्टूडेंट जो है वो पिन पॉइंटेड आंसर देंगे। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्हाट से शुरू होने, व्हाट आर या डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Now one student will write the statements of three laws, another student will explain each law with one example, another student will explain each law with two example। देखिए, जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा हुआ है, he knows much, he knows many things, लेकिन जब वो उसके स्कोप को डेफिनिट करने की बात आती है, तो हर एक बच्चा अपने माइंड से डिसाइड करता है। तो अब टीचर क्या करेगा? व्हाट आर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, तो जिसने दो दो एग्जाम्पल के साथ लिखा है, ज्यादा लिखा है, टीचर ने उसको पूरे नंबर दे दिए। अब बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है कि इसमें तो एग्जाम्पल तो लिखा ही नहीं हुआ था। हम कहते हैं नहीं, एग्जाम्पल तो इम्प्लाइड है, आपको देने ही थे, दो देने थे, इसने दो दिए, देखो मैंने इसलिए ज्यादा नंबर, दिस इज रॉन्ग। तो क्यों नहीं मैं क्वेश्चन को ऐसा लिखूं, डिस्क्राइब ईच ऑफ थ्री न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विद वन एग्जाम्पल। अब सबके पास स्कोप फिक्स है, किसी ने दो नहीं लिखने, दो लिखता लिखे जाए, लेकिन मिनिमम वन इज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन, ये जो एवेल्युएशन है,
अगर ये एवेल्यूशन प्रॉपर नहीं होती, ये भी स्टूडेंट को डीमोटिवेट करती है। हाँ जी, और बताइए। हाँ जी, क्या कहते हैं? चलिए, आप बैठे हुए हैं, आप शेयर कीजिए, आप इधर आ जाइए मेरे पास ताकि भी आपको लोग देख सकें। आशुतोष जी, आप आए कि आपने कौन सी टेक्निक यूज की है फॉर मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स? हाँ, उनके सुनहरे भविष्य को फील कराना मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका है उनको मोटिवेट करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि सुनहरी भविष्य, यानी आप इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हो, वो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बताएं कि कहाँ कहाँ पर इस कोर्स का स्कोप है, और उससे भी पहले जो आपको सब्जेक्ट मिला पढ़ाने के लिए, तो टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए कि ये टॉपिक पढ़ने से आपको इस इंडस्ट्री में आप ये काम कर सकते हैं। यानी पहले उस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस बताई जाए, ना कि आप पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएं कहानी बताने के लिए। तो ये आपका कहने का मतलब है। हाँ, आप में से कोई और? हाँ, आप आइए, इधर आइए। आप अपना नाम बताइए पहले, कहाँ से हो? Myself, Kapil Kumar, I am from Government Polytechnic, Pilibhit. पीलीभीत। हाँ जी। Yes. I think that the students can be motivated by making our lectures so interesting in the class that they should attend the classes. And I think this can be done by linking our subject or study with the real world applications. कि इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, कोई भी चीज़ है कि सभी को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या रियल लाइफ एप्लीकेशन से अगर हम जोड़ेंगे तो बच्चे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम एप्लीकेशंस के साथ लिंक करें और स्टूडेंट्स को टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ असाइनमेंट भी दें, सो दैट दे आर एबल टू अप्लाई वट एवर दे हैव लर्न इन द क्लासरूम इन अदर सिचुएशन, when they are able to transfer classroom learning into another situation, that will help them retain the knowledge for a longer period of time। क्योंकि यूजली हम जैसे ही क्लास खत्म होती है हम बाहर चले जाते हैं, वी नेवर गिव देम असाइनमेंट। स्कूलों में हम देते हैं, वो स्कूलों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आप अप्लाई कीजिए तो उसका कितना फ़ायदा है। जैसे ही पढ़ाया, पढ़ाने के बाद लिस्ट ऑफ बुक्स दे दीजिए, कुछ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स के नाम दे दीजिए कि यहाँ यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है, या इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे ये वीडियो फिल्म्स हैं, यू कैन गो थ्रू। इसके लिए हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी। या कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स आप देखेंगे, कोई भी टॉपिक ले लो इंजीनियरिंग का, 4-4, 5-5 मिनट्स के इतने सारे वीडियो फिल्म्स जो हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हैं, उनको जस्ट डाउनलोड कीजिए और उनको क्लासरूम में दिखाइए। तो देखो कितना इंटरेस्ट जो है उनका, क्योंकि इन्होंने बोला क्लासरूम लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेक्चर में क्या करना है, एक तो 2 वे है, यानी उनका पार्टिसिपेशन लेना है, एग्जाम्पल्स लेने हैं, बोर्ड का यूज़ करना है, ये पीपीटी है उसको करना है, एग्जाम्पल के साथ लिंक करना है, राइट। और थैंक यू, ओके जी। हाँ जी, और बताइए, आप में से कौन? आप इधर आइए, इधर आओ। आप अपना नाम बताइए, और क्योंकि आपको वो देख नहीं पाएंगे, कैमरा इधर मुड़ नहीं सकता। आप अपना नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम। My name is Pragya from Government Polytechnic, Tundla, and I want to say that we can motivate the students by their active participation in the lecture, by giving feedback and asking questions. We can motivate the students.
and using techniques is also essential. थैंक यू वेरी मच। सो मैं अब आपके सामने जो मेरे जो पॉइंट्स नोट किए हुए हैं आपके सामने मैं रखता हूँ। वन इज दैट एंश्योर दैट देयर बेसिक नीड्स आर मेट। इसके लिए मैंने आपको बताया था बेसिक नीड क्या है, जो शुरू वाली नीड फॉर फूड, नीड फॉर वाटर, नीड फॉर एंटरटेनमेंट। तो कॉलेज में एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो, नॉन थ्रेटनिंग हो, तो उनकी लोअर लेवल नीड जो है फुलफिल हो जाए। टाइम टेबल इस तरह से बने कि हर 2 पीरियड के बाद 10 मिनट की ब्रेक हो और जो है उनको encourage किया जाए। Then create an environment that is open and positive. Yes, if you have any difficulty, you are free to come to me anytime. I'll provide you guidance. तो अगर बच्चा आपके पास आने में डरता है या आपके रूम में एंटर करने से डरता है, तो वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। हमें एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि बच्चा जो है आपके पास आके अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके। Another is smile at the group. Always enter the classroom with an attitude that I am going to enjoy my people. So smile at them and project an image of someone who is pleased to be in the class. See, a smile is an inexpensive way to improve one's looks. So smile at them. तो इससे they will feel very much motivated कि टीचर जो है enthusiastic है और टीचर जो है willing है पढ़ाने के लिए, not with an attitude, oh today again there is a class. हाँ, कई टीचर ऐसा यार आज फिर क्लास है यार, नहीं ऐसा नहीं। So enter the classroom with an attitude I am going to enjoy. So definitely you will enjoy. Another is specify what your students are to learn. When you enter the class, you explain the reason why we are learning a particular topic. Explain the necessity. Then write the topic on the board, and on the left hand side you give them an overview of your lecture, that after this session you will be able to describe, explain and so on. So set SMART goals. S means specific, specified. Specified matlab you will ask question like define force, state SI unit of force, explain working principle of carburetor of an IC engine with a neat sketch. आपने पूरा उसको स्कोप दे दिया। S stands for specified, M stands for measurable. जो specified होगा उसको आप objectively measure कर सकते हैं। अगर मैं define force पूछता हूँ तो आपको measure करना आसान है। अगर मैं what is force पूछता हूँ तो it will be very difficult for a teacher to measure it objectively, because in this case different students will give different answers. तो आप क्या चीज देखना चाहते हो वो समझ नहीं आएगी आपको भी। सो A stands for attainable. आपने उनको कोई प्रोजेक्ट दिया, पहले सिंपल प्रोजेक्ट दें जो उनकी रीच के अनुसार हो। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, आई नो दैट दीज आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच अबव एवरेज, कुछ स्टूडेंट बिलो एवरेज हैं, तो मैंने उनका मोरल भी बूस्ट करना है। तो आई विल आस्क ए सिंपल क्वेश्चन टू ए बिलो एवरेज स्टूडेंट, he will answer it correctly, perhaps next time he will try to answer a difficult question. तो मेरा पर्पस है उसका मोरल बूस्ट करना। So A stands for attainable, R stands for realistic, relevant. जो भी एग्जांपल लें क्लासरूम में पढ़ाने वाला टॉपिक के साथ वो रेलेवेंट हो। रियलिस्टिक का मतलब है कि जो भी आप प्रोजेक्ट दें या असाइनमेंट दें वो उनकी रीच में हो, फिजिबल हो। ये नहीं कि आपने वो टास्क दे दिया उनको जो आपसे नहीं हुआ, राइट। एंड T stands for टाइम बाउंड, यानी जो भी आप प्रोजेक्ट दें उसमें टाइम का कंपोनेंट उसमें इंक्लूड करें। एंड जब आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं स्टूडेंट के साथ तो म्यूचुअल गोल सेटिंग हो, यानी उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो कि हाँ भी इसमें हमने ये करना है तो कैसे कैसे करना है, दे विल ऑल्सो गिव देयर। एंड देन अनदर इज मैचिंग स्टूडेंट्स टू टास्क। मैंने आपको बोला था that there are some students who have strong need for power, some students have strong need for relationship, okay, so task should be assigned accordingly. Some students have got strong need for achievement, तो मुझे प्रोजेक्ट में या कोई कॉलेज में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करें कि किस नीड की किस स्टूडेंट की कौन सी स्ट्रॉन्ग नीड है, अकॉर्डिंगली अगर टास्क दिया जाएगा वो टास्क में 100% अपना लगाएगा, ठीक है। Other techniques are
प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। एक नहीं, डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस दीजिए, और इसके लिए तैयारी हमारे पार्ट पे बहुत ज़रूरी है। अगर हमने 1 घंटे का लेक्चर देने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा घर में प्रिपेयर किया है कि कैसे मैं लेक्चर को शुरू करूंगा, कैसे मैं कहाँ क्वेश्चन पूछूंगा, यानी लेसन प्लानिंग, वो हमने एक थर्सडे को टॉपिक रखा हुआ है जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ विल प्रिपेयर ए लेसन फॉर द लेक्चर। ओके, सो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लेक्चर को प्लान करना है। तो अगर लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है देन नेचुरली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा। Another is that provide opportunities to experience success by assigning tasks which are neither too easy nor difficult and attributing success to their effort only। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, that is very innovative, उस बच्चे को सारी क्लास के सामने उसके प्रोजेक्ट को दिखाया जाए, या HOD के पास लेके जाया जाए, या डायरेक्टर के या प्रिंसिपल के पास, सर देखिए इसने कितना अच्छा काम किया है, तो उसका देखो मोरल कितना खुश हो। ये नहीं कि प्रोजेक्ट लेके मैं खुद ही चले जाऊं, ये सर देखो हमने तैयार किया या मैंने तैयार किया। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, पर्टिकुलरली ME लेवल में काम सारा बच्चे ने किया है, बच्चे को क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने पेपर पब्लिश करना है, इसमें मेरा नाम पहले नंबर पे आए। दिस इज रॉन्ग। पहली बात तो कि मैंने वो काम नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको गाइड किया है। अगर कंट्रीब्यूट किया तो मेरा नाम नंबर 2 पे आए, काम सारी मेहनत उसकी है तो उसका नाम सबसे पहले। देखिए हमने अचीव कर लिया बहुत कुछ, तो अब बच्चों को हमने आगे इंस्पायर करना है, तो उनका जो एफर्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। Another is providing opportunities to grow and mature। इसका मीनिंग क्या है कि आपने कोई टास्क दिया तो साथ में आप उसका टेक्निक मत बताइए, लेट हिम डू। देयर आर मेनी वेज, हो सकता है वो आपके तरीके से जो है उसका जो तरीका है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, सो उसको ग्रो होने का, मैच्योर होने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। Another is provide immediate feedback to students। इमीडिएट का मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव, जैसे मैं हाँ भी आप सामने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ना आशुतोष तुम्हारी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी रहेगी, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, उसी समय देयर एंड देन इटसेल्फ। ये नहीं कि 5 दिन बाद मैं इनका काम अप्रिशिएट करूँ कि आपने तो बहुत बढ़िया उस दिन तैयार किया था, तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो गिव इंफॉर्मेटिव फीडबैक इमीडिएटली। पर्पज ऑफ गिविंग फीडबैक इज टू इम्प्रूव, नॉट टू प्रूव यार तू तो हमेशा ऐसा ही काम करता है, तो ऐसा नहीं। तो बी फेयर इन गिविंग फीडबैक, गिव फ्रीक्वेंट अर्ली पॉजिटिव फीडबैक दैट सपोर्ट स्टूडेंट्स बिलीव दैट दे कैन डू वेल। यस, यू कैन डू वेल। Another is building strong and positive self concepts among students। You must have confidence in their ability। Yes, you can do it, Arun, you can do it very well। I think this work you have already done it। उसी तरह से मिलता जुलता है, you can do it। You see, I'll quote a story called Pygmalion effect। Pygmalion was the king of Cyprus, and he carved an ivory statue of a woman and started worshipping। Soon life was brought to that statue in response to his prayer to God। वो बात अलग है कि उसने उस लेडी के साथ शादी कर दी, but the point of Pygmalion effect is that you may be able to convert an undermotivated person into a high producer by a simple method of believing that he or she can improve। कॉन्फिडेंस, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारी इंडिया में फिल्में भी बनी है, राइट, कि हमें बिलीफ है यस ही कैन डू इट। और अगर हम दिन में 10 बार बोले, जोर से ऐसे करें, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यू विल डेफिनेटली डू इट। 3 सेंटेंस बच्चों को सिखाइए, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट, तो देखो कितना मोरल जो है वो बढ़ता है। Another is
Students need to have a sense of belonging in order to succeed. So accept and welcome each and every student in some way. सबको accept करना है as a responsible person. Be approachable. They need your guidance, so be visible. Whenever they are in need of some guidance, you must be available. ये नहीं कि अच्छा आप बच्चों को बोल दे आप मेरे कैबिन में आ जाना, पहली बात तो कैबिन नहीं मिलेगा, दूसरी बात कैबिन में आप हो नहीं, राइट? सो यू मस्ट बी अप्रोचेबल एंड मेंटेन good interpersonal relationships, maintaining student interest. So use actual material in the classroom, that is try to bring the you can say equipment, material and so on, charts, pictures, models, videos and PowerPoint presentations. Focus student attention by gaining their attention by frequent movements in the classroom, by using gestures and so on, okay? And stimulus variation. Previous experience. Try to link the topic. I'll say try to begin your lecture with some input from your previous lecture. और देखिए जब आप पढ़ा रहे हैं तो रिकॉल करवाएं उनकी प्री रिक्विजिट्स. पहले तो प्री रिक्विजिट्स देखिए, हर एक टीचर अज्यूम करता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है और इसके लिए स्टूडेंट को ये आता होना चाहिए. प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना हर एक टॉपिक के, तो वो जो प्री रिक्विजिट्स हैं पहले क्लासरूम में टेस्ट करें कुछ सवाल पूछ के. जैसे मैंने एक इनर्शिया का भी एग्जाम्पल लिया था शुरू में, याद है? तो मैंने प्री रिक्विजिट सोचा था कि इनको रेस्ट, मोशन और फोर्स के बारे में पता है, और उसके बाद अगर ये पता है तो इनर्शिया वो आसानी से सीख जाएंगे. तो मैंने क्या कहा था आपके साथ, यस ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा है, इज इट एट रेस्ट और इज इट मूविंग? तो आपका रिस्पॉन्ड आया. फिर मैंने मोशन का, फिर मैंने पूछा इसको कैसे आप मोशन में ला सकते हो एंड सो ऑन, ओके? सो इस तरह से आप उसको जो है प्री, और साथ साथ आपको डेरिवेशन कर रहे हैं. और पिछले सेमेस्टर में आपने कोई रिलेशनशिप पढ़ाई थी इनको, और मान लीजिए इससे पढ़ाते पढ़ाते आप F इज इक्वल टू ma यूज करना है, F का वैल्यू, तो आप बोलेंगे यस लास्ट सेमेस्टर में वी हैव लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन. कैन यू टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन? रिकॉल करवाया. एक तो है कि पढ़ाते पढ़ाते आप बोले हाँ आपको पता है F इज इक्वल टू ma होता है, यहाँ पर ma लगा दीजिए F की वैल्यू. दिस इज रॉन्ग. तो रिकॉल कराएं जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है. तो जितनी जो है रिकॉलिंग होगी उतनी ही परमानेंट रिटेंशन होगी, अदरवाइज वो फॉरगेटिंग में चले जाएगा. देन अनदर इज इंडिविजुअलाइज रीइंफोर्सर्स. मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि व्हाट एक्ट्स एज ए रीइंफोर्सर फॉर वन मे नॉट बी फॉर अनदर, तो यूज डिफरेंट रीइंफोर्सर्स. सो फ्रेंड्स, these are some of the techniques which we can employ for motivating the students. So if you have any question, you are welcome. Yes. हाँ जी, रियातन बारा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू वांट टू ऐड, यू आर वेलकम. यस. हेलो. हाँ जी. Sir, I want to ask that engineering student from a background where practical experience, theory experience. सर आपकी साउंड प्लीज, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्योंकि साउंड में प्रॉब्लम आ रही है. Sound is not very clear. हाँ जी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. हेलो. हाँ जी बोलिए. Sir, I want to ask that how we should motivate the student for laboratory works. Actually, in the classroom, we can apply many methods. But nowadays, the students comes in the laboratory
any previous experience working in the laboratories and they are not interested in working in laboratory. So how we can motivate them? सर उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है कि अगर मैं लेबोरेटरी में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पूरा टाइम लेबोरेटरी में ही बिताना है। मुझे ये नहीं कि उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं लैब से बाहर चले जाऊँ। तो जहाँ आप साथ साथ मॉनिटर करेंगे कि वो जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उन्होंने ठीक तरह का जो इक्विपमेंट है या डिवाइस है वो कलेक्ट किया, उसको असेंबल किया प्रॉपरली, और साथ साथ आप उनको मॉनिटर करते जाएंगे, उनको फीडबैक देते जाएंगे। क्योंकि जब हम उनके साथ इन्वॉल्व होकर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर अच्छा साथ ही आप उनको बताइए कि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है इसका पर्पस क्या है, ये जो हम करने जा रहे हैं इससे हमारा इसका क्या नतीजा क्या निकलेगा। तो उनको रीजनिंग जस्टिफिकेशन जो है वो जरूरी देनी है। Right. Thank you. ओके जी, एनी अदर? So okay, then if you have no question, then we end the session, and we request you to come tomorrow at 9:30. So thank you very much. So tomorrow the session will begin at 9:30. Thank you very much. Thank you. Thank you.